اگر آج کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ خدا کون ہے، تو کیا آپ واضح جواب دے پائیں گے، یا آپ صرف یہ کہیں گے خدا ہے، بس ہے؟ کیا خدا صرف ایک طاقت ہے، یا وہ دور بیٹھا ہوا ایک بادشاہ ہے؟ کیا وہ صرف حکم دینے والا ہے، یا وہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کے ساتھ رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ میری نظر میں یہ سوال ایک معمولی سوال نہیں، بلکہ انسانیت کی نجات کا پورا سفر اسی ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کو اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم نجات کے سفر کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ نجات محض گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ نجات خدا کی الہی ذات کے ساتھ رشتہ بحال ہونے کا نام ہے۔ پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت میں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے: ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ مختصر ضرور ہیں، مگر پوری کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی وقت نہیں تھا، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی زمین، اور انسان بھی نہیں تھا، صرف اور صرف خدا۔ مگر وہ کون تھا میرے عزیزو؟ اس کے بارے میں آرتھوڈاکس ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن وہ ایک جامد، تنہا یا سر طاقت نہیں، بلکہ وہ تثلیث ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ تین خدا نہیں، بلکہ یہ ایک ہی الہی ذات میں تین اقانیم ہے، جس کا مطلب ہے خدا ایک ہے، وہ اکیلا نہیں، اس کی الہی ذات میں باپ، بیٹا اور روح القدس ازل سے ایک کامل رفاقت میں موجود ہے۔ اسے ہم ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں: باپ ازلی سرچشمہ ہے، بیٹا ازلی طور پر باپ سے مولود ہے، اور روح القدس ازلی طور پر باپ سے صادر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ محض ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں، بلکہ یہ انسان کی بنیاد ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، پھر خدا نے کہا روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف یوحنا کی انجیل میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے: ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا، یعنی تخلیق باپ سے، بیٹے کے وسیلہ سے، اور روح القدس سے وجود میں آئی۔ پہلا کرنتھیوں میں بھی کچھ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں: لیکن ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس سے سب چیزیں ہیں، اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ انہی آیات کے بارے میں مقدس آبائے کلیسیا باسل عظیم لکھتے ہیں: تخلیق میں ہم باپ کو سرچشمہ حیات کے طور پر دیکھتے ہیں، بیٹے کو عمل کے طور پر، اور روح القدس کو مکمل کرنے والے کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث بنیادی طور پر تخلیق کے آغاز سے ہی فعال تھی۔ مقدس یوحنا رسول اس کے بارے میں لکھتے ہیں: خدا محبت ہے،
और ये सिर्फ एक सिफ्त नहीं, बल्कि ये उसकी फितरत है। अगर मोहब्बत को हम ऐसे बयान करते हैं कि खुदा मोहब्बत है, तो मेरे अजीजों, जहां मोहब्बत होती है वहां ताल्लुक जन्म लेता है। मोहब्बत कभी तन्हा नहीं हो सकती। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, और रूहुल कुद्दस इस मोहब्बत की जिंदा सांस है। मत्ती की इंजील में कुछ यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। इसी के मुतल्लक मुकद्दस ग्रेगोरी फरमाते हैं, मैं एक को सोचता हूं और तीन की रोशनी मुझे घेर लेती है। मैं तीन को सोचता हूं और मैं एक में वापस आ जाता हूं। मेरे अजीजों, यही तस्लीस का राज है। इत्तेहाद में कसरत और कसरत में कामल इत्तेहाद। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, खुदा को तख्लीक की जरूरत थी? ऑर्थोडॉक्स ईमान इसके बारे में वाज़ेह जवाब देता है कि नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं थी। खुदा अपनी जात में कामिल है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, और तख्लीक उसकी मोहब्बत की फ्याजी का इजहार है, जरूरत का नतीजा नहीं। दूसरे पत्रस में हम देखते हैं, ताकि तुम उनके वसीला से अलाही फितरत में शरीक हो जाओ। और इसी के बारे में मुकद्दस अथनासियुस कहते हैं, खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी नेकी में शरीक हो। यानी तख्लीक जरूरी नहीं थी, बल्कि ये सब उसका फजल था, ये उसका इलाही करम था, और ये मोहब्बत की फरावानी थी। पैदाइश की किताब में लिखा है, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। ये हम बड़ा गौर तलब है। आइए जरा सोचते हैं कि ये हम का लफ्ज इस आयत में क्यों इस्तेमाल हुआ। बहुत से आबाए कलीसिया इस आयत में तस्लीस की इब्तदाई झलक देखते हैं। इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इंसान में अकल है, इंसान में आजादी है, इंसान में मोहब्बत की सलाहियत है, और इंसान रिश्ता कायम कर सकता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और इसी के मुतल्लक मुकद्दस आइरेनियस लिखते हैं, खुदा का जलाल इंसान की जिंदा जिंदगी में जाहिर होता है, और इंसान की जिंदगी खुदा की हजूरी में है। यानी इंसानी जिंदगी का असल मकसद खुदा को जानना और उसकी हजूरी में जीना था। याद रखिए, मोहब्बत कभी भी जबर से नहीं होती। अगर खुदा इंसान को मोहब्बत के लिए मजबूर करता तो आज इंसान रोबोट होता या एक मशीन होता, मगर खुदा ने इंसान को आजादी दी। याद रखिए, आजादी बरकत भी है और आजमाइश भी। यही इन आजादी निजात की कहानी को मुमकिन बनाती है, और यही आजादी जवाल को भी जन्म देती है।
जिसे हम अगली किस्त में गहराई से देखेंगे। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया तो उसने सिर्फ मट्टी को जिंदगी नहीं दी, बल्कि उसे बुलाहट दी। ये बुलाहट क्या थी? ये बुलाहट सिर्फ बागे अदन में रहने की दावत नहीं थी। ये बुलाहट सिर्फ फर्मा बरदारी की नहीं थी। ये बुलाहट खुदा के साथ शिरकत की थी। ऑर्थोडॉक्स तालीम के मुताबिक इंसान का मकसद सिर्फ अखलाकी तौर पर अच्छा बनना नहीं था, बल्कि खुदा की जिंदगी, उसके नूर और फजल में शरीक होना था। ऑर्थोडॉक्स रवायत में इसी शिरकत को थियोसिस कहते हैं। मुकद्दस अथनासियस फरमाते हैं, खुदा इंसान बना ताकि इंसान फजल से खुदा में शरीक हो सके। ये जुमला ऑर्थोडॉक्स ईमान का दिल है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इंसान खुद खुदा बन जाएगा, बल्कि वो खुदा की जिंदगी में शरीक होकर इलाही नूर से मुनव्वर होता है। इसी को कलीसियाई ज़बान में थियोसिस कहा जाता है, यानी इलाही फितरत में शरीक होना। बागे अदन सिर्फ एक खूबसूरत बाग नहीं था, बल्कि ये वो जगह थी जहां खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता जिंदा हुआ। आदम का काम सिर्फ जमीन को संभालना नहीं था, बल्कि खुदा के साथ रफाकत में रहना था। इसीलिए बहुत से मुकद्दस अबाए कलीसिया बागे अदन को पहली इबादतगाह कहते हैं, क्योंकि वहां इंसान खुदा की हजूरी में खड़ा था। खुदा ने दुनिया यानी जमीन की निगरानी इंसान को सौंपी, मगर इसलिए नहीं कि उसे अपनी मलकियत समझकर रख ले, बल्कि इसलिए कि वो उसे शुक्रगुजारी के साथ खुदा की तरफ लौट आए। यही हकीकत बाद में इलाही लिटर्जी यानी डिवाइन लिटर्जी में जाहिर होती है, जहां हम खुदा की दी हुई नेमतों को वापस उसी को पेश करते हैं। याद रखिए, आदम और हवा गुनाह के साथ पैदा नहीं हुए थे। वो पाक थे, वो नूर में थे, वो खौफ से आजाद थे, वो गुनाह से आजाद थे, मगर अभी रूहानी पुख्तगी हासिल नहीं हुई थी। वो उसके जलाल में आगे बढ़ रहे थे। वो को खुदा की हजूरी में तरक्की कर रहे थे। खुदा ने उन्हें एक हुक्म दिया, नेक व बद के इल्म के दरख्त से ना खाना। याद रखिए, ये हुक्म कोई जबर नहीं था, ये एक दावत थी, एतमाद की दावत। लेकिन क्या इंसान खुदा पर भरोसा करेगा या खुद मुख्तारी का रास्ता इख्तियार करेगा? आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। इंसान को आजादी दी गई और आजादी के साथ आजमाइश भी आती है। इसीलिए सांप यानी इब्लीस ने हवा से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। मेरे अजीजों, यह एक खतरनाक झूठ था। इंसान को वाकई ही खुदा की मानद होना था, मगर फजल के जरिए, अताअत के जरिए और मोहब्बत के रिश्ता के जरिए। लेकिन शैतान ने चाल चली और इंसान का रास्ता बदल दिया। और मेरे अजीजों, यहीं से गुनाह इंसानी जिंदगी में दाखिल हुआ, खुदा से अलग होकर खुदा बनने की कोशिश।
ऑर्थोडॉक्स तालीम ये नहीं कहती कि आदम ने कोई कानूनी जुर्म किया जिस पर खुदा ने सजा दी। जब इंसान खुदा से जुदा हुआ तो वो जिंदगी के मंबा से कट गया और उसी से मौत और फसाद दुनिया में दाखिल हुए। जब इंसान ने खुदा से मुंह मोड़ा तो वो लाफानी जिंदगी से महरूम हो गया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह रोमियो की किताब में लिखा है, एक इंसान के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। इसका नतीजा क्या हुआ? खौफ, शर्मिंदगी, मौत और अंदरूनी टूट फूट। लूका की अंजील में यूं लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। और पहले करंथियों में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। नजात बहाली है। नजात इंसान की वापसी का सफर है। और इस तनाजुर में मसीह की आमद का मकसद किसी अलाही गजब को खत्म करना नहीं था, बल्कि उस तारीकी को तोड़ना था जिसमें इंसान खुद दाखिल हो चुका था। वो आया कि गुनाह की जंजीरों को काटे, मौत के दरवाजे को तोड़े और इंसान को दोबारा खुदा की हजूरी में ले आए। अगर खुदा मोहब्बत है तो नजात मोहब्बत की तौसी है। बाप नजात का इरादा करता है, बेटा मुजस्सम होकर उसे जाहिर करता है और रूह कुद्स उसे हमारे अंदर जिंदा करता है। बस नजात एक तसलीसी अमल है। मुकद्दस आइरेनियस लिखते हैं, इंसान अपनी नाफरमानी से शुरू ही में ठोकर खा गया, मगर खुदा ने उसे फिर भी ना छोड़ा। और यहीं से नजात की कहानी शुरू होती है। पैदाइश की किताब में खुदावंद फरमाता है, औरत की नस्ल सांप का सर कुचलेगी। मेरे अजीजों, ये बाइबल की पहली खुशखबरी है। ये था मसीह की आमद की तरफ पहला इशारा, यानी जवाल के फौरन बाद खुदा ने नजात का मंसूबा जाहिर किया। ये गुस्सा हरगिज नहीं था, ये मोहब्बत की इंतहा थी। लेकिन यहां हम एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, नजात क्या है? क्या नजात सिर्फ सजा से बचना है? क्या नजात सिर्फ अदालत से बरी होना है? अब सवाल ये है कि हम ये सब तारीख क्यों जाने? मेरे अजीजों, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हमारी शनाख्त की कहानी है। अगर खुदा तसलीस है तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता हमारी फितरत में लिखा हुआ है। हम तन्हाई के लिए नहीं बनाए गए। अगर खुदा मोहब्बत है तो नफरत, हसद और खुदगर्जी हमारी असल फितरत नहीं बल्कि बीमारी है। अगर इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया है तो हर इंसान, चाहे कमजोर हो या ताकतवर, अमीर हो या गरीब, बावकार और कीमती है। लेकिन याद रखिए, नजात रिश्ता जुड़ने का नाम है। ये तालीम सिर्फ ज़हनी मालूमात नहीं, बल्कि ये दिल की समत दुरुस्त करती है। मुकद्दस बासिल अजीम फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी खुदा को भूल जाना है
और सबसे बड़ी शफा उसे याद रखना है। और मुकद्दस ग्रेगोरी कहते हैं, इंसान की रूह खुदा की तरफ मुसलसल बढ़ने के लिए बनाई गई है। यानी हमारी बेचैनी, हमारी तलाश, हमारी प्यास, ये सब इस बात की अलामत है कि हम अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे और हम उसी के लिए बनाए गए हैं जो हमसे बड़ा है। और यही ऑर्थोडॉक्स रूहानियत की बुनियाद है। खुदा को याद रखना, उसकी तरफ बढ़ते रहना और उस रिश्ता को बहाल करना जिसके लिए हम तख्लीक हुए थे। मगर एक सवाल अब भी बाकी है। अगर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उसे मोहब्बत के लिए पैदा किया, तो फिर दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है? मौत क्यों आई? दुख क्यों पैदा हुआ? इंसानी तारीख टूट-फूट, जंग और जुदाई से भरी हुई क्यों है? अगर आगाज इतना रोशन था, तो फिर ये तारीकी कहां से आई? मेरे अजीजों, यही वो मकाम है जहां कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। क्योंकि खुदा का मंसूबा इंसान की नाकामी से खत्म नहीं हुआ। उसकी मोहब्बत कमजोर नहीं पड़ी, उसका इरादा रुका नहीं। अंधेरे ने रोशनी को मिटाया नहीं, बल्कि रोशनी ने अंधेरे के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू किया। अगली किस्त में हम देखेंगे कि इंसान ने ये आजादी कैसे खो दी, जवाल कैसे वाक़या हुआ और खुदा ने इसी लम्हे निजात का वादा कैसे दिया। क्योंकि खुदा का मंसूबा इंसान की नाकामी से खत्म नहीं होता। उसकी मोहब्बत तारीख के अंधेरों में भी अपना रास्ता बनाती है। और यही वो लम्हा है जहां से निजात की अजीम कहानी शुरू होती है। क्योंकि निजात की पूरी कहानी दरअसल इंसान के उसी सफर की कहानी है, शबीह से ममासलत तक। खुदा आपको अपने इलाही फजल से नवाजे। आमीन।